Good morning students. This video is for the question answer of the chapter. Okay. So without wasting our time, we will do the question answer so that you may get good marks in your examination. So I am going to start this. I hope that you must have subscribed this channel, and if not then please subscribe it fast. सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब अपना कर ही लें, इसको शेयर करें, लाइक करें, और आपको हर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर इसी तरह से वीडियो बनाकर मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये B1 का 1 है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। लेसन में जो आप पढ़े हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर ए? इट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, you will find out the answer of this question from the text which we have already read in yesterday's video. That is here. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere. During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. This is the answer of our question. So ये from here to ये these two lines are the answer of the question number A. Okay. So in the same way we will do our question answer, right? So please move on. We will see now the next question. Our next question is, Dr. Radhakrishnan always championed the problems of poor people. Here seeks to champion the right of all men to live in dignity and with justice. ये बी का आंसर ये आपको है। सो ए एंड बी बोथ आर आंसर्ड अकॉर्डिंग टू दीज टू लाइन्स हियर। सो यू विल राइट डाउन द आंसर फ्रॉम दीज लाइन्स, राइट? देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Dr. Radhakrishnan, Dr. Zakir Hussain entered the office of the president in a spirit of. A spirit of answer is given in line number 1. What is line number 1? So here a spirit of prayerful humility and total dedication. This is, what is this? So a spirit of prayerful humility and total dedication. This is the answer we will find here. Then next question. Next question is question number D. According to Dr. Zakir Hussain, the value remains unchanged. वो किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? ये भारतीय संस्कृति का जो कल्चर है उसकी जो खूबियाँ हैं, सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, रेस्पेक्ट फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी थिंग लाइक कास्ट क्रीड. सो ये दिस इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड. अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज द chief
factor according to which with which help according to Dr. Zakir Hussain, education is the chief defense of a country. ये देश की रक्षा का सवाल एजुकेशन है, और एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कल्चरल स्पिरिट ऑफ द कंट्री. देश की सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री में बी सेफ गार्डेड बाई एजुकेशन. शिक्षा के द्वारा सांस्कृतिक उपलब्धि को बचाए रखा जा सकता है. सो एजुकेशन कैन प्ले ए ग्रेट रोल रिगार्डिंग दीज issues. So this question number A has been completed. Now question number B. What is B? This B. What did Dr. Radhakrishnan bring to the presidency? ये आप इसमें से ये खोज करके लिखें. ये बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ये पहले वाले लाइन में आपको है ये. But Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a high spirit, high faith in educational achievement of the country. वो जब राष्ट्रपति बने तो क्या लेकर के वहाँ पढ़ाए? तो he brought faith in education. People were understanding him, great educationist, and that was his capital, which he brought to the presidency. ये ज़रूरी नहीं है कि आप किताब का लाइन बाय लाइन ही लिखें. एक्चुअल बेटर आंसर का मतलब होता है कि आप यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग. आपने चैप्टर को पढ़ा और उसको अपनी भाषा में आंसर दें. आंसर मस्ट बी योर ओन वर्ड्स, योर ओन लैंग्वेज. आप अपनी भाषा, अपने शब्दों का चयन करें. ये नहीं है कि पूरा का पूरा हू बहू आप किताब का लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा नहीं होता है. तो यू हैव टू आंसर द थीम ऑफ द चैप्टर. व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ? डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, एंड ही वुड मेंटेन द ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर, Indian heritage, which is faith in all, equal chance for all. What is the business of education? The business of education is strengthen the power of the country and the people, and it is the bearer of the cultural heritage of the country. What did Dr. Zakir Hussain pledged himself to? Dr. Zakir Hussain pledged himself to maintain the dignity of the country, dignity of the cultural heritage of India. Number 5. What does work on oneself mean? What is its end product? One's self mean is to work on oneself mean is to work personally, to work for the benefit of individual. अपने व्यक्ति खुद के लिए काम करे तो ये बोला जाता है वर्क ऑन वंस सेल्फ, फॉर आवर सेल्फ, खुद के लिए, समाज के लिए नहीं. लेकिन अंत में प्रोडक्ट क्या आता है? दैट इज काउंटेड एज ए टोटलिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी. व्यक्ति अगर अकेले कार्य करता है तो सारे व्यक्तियों का योग फल, total amount, sum of the product of all the people is called the country's work. So सोसाइटी का जो प्रोडक्ट है वो ये है कि सारे व्यक्ति का मिला करके. तो इफ वी आर वर्किंग ऑनेस्टली, इवन इफ इट इज सिंगल हैंडेडली, स्टिल देन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी. व्यक्ति अकेले काम करेगा तब भी वह जो करेगा वह एक टोटल सम के रूप में काम आएगा सोसाइटी का. व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू? हमें डेडिकेट करना चाहिए टू आवर सोसाइटी, टू आवर वर्ल्ड, टू द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, टू द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन, टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, टू द मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज. व्हेन डिड
व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, ये आपको सबसे ऊपर के चैप्टर में दिया है, ये सबसे ऊपर के लाइन में ये जो इंट्रोडक्शन है राइटर का, इसी में आपको ये मिल जाएगा। सबसे ऊपर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969, बॉर्न इन हैदराबाद। ओके, सो आफ्टर दैट again we will concentrate on the question answer. So when was Dr. Zakir Hussain born? How long did Dr. Zakir Hussain live? उस बीच में से निकाल दीजिए, उतना दिन उनका लाइफ का हो गया स्पैन। सो ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? ही डिलीवर्ड दिस स्पीच व्हेन ही टुक ओथ फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। What does Dr. Zakir Hussain call India, the young state of an ancient people? Why does Dr. Zakir Hussain call India the young state of an ancient people? क्योंकि आज़ादी हो गई थी 1947 में, और उसके बाद जो हमारी सरकारें बनी उसके अंतर्गत ये जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बने हैं बाद में आकर के। तो उसके पहले देश क्या था, देश की परंपराएं बहुत पहले से हैं, महानता देश की कोई 1947 के बाद ही आया है ऐसा नहीं है। तो आवर कंट्री हैड बीन ए ग्रेट कंट्री फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, एंड दिस गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी आर फॉलोइंग इज आफ्टर 1947. सो this is the meaning of the young state. The state was young, very new state, because it is being formed according to this form of government in 1947. So the young state of an ancient people, the cultural heritage was old. So that is the meaning of ancient people. पुराने लोगों के महान विचारों के आधार पर यह सरकार का गठन हुआ है, यह नई संवैधानिक व्यवस्था बनी है। So then after that we will see here, ये क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर है, तो ये आप करेंगे। और इसका क्या अब तक समझ में आया आपको? ये हम लोग ये समझे कि पूरा चैप्टर का थीम ये है कि सांस्कृतिक विरासत, जो भारत का कल्चरल हेरिटेज है, दैट कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत इज द चीफ कंसर्न ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का मेन कंसर्न वही है कि सांस्कृतिक विरासत है, उसे मेंटेन करना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिसमें सब धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखा जाता हो, ठीक है। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स। व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क? काम करने के दो तरीके हैं, एक तो है कि इंडिविजुअली काम करे, इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए, एंड अदर इज फॉर द वर्क फॉर द हेल्प ऑफ सोसाइटी। सो एट लास्ट बोथ टाइप ऑफ वर्क आर मींट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये समाज अच्छा है तो व्यक्ति भी अच्छा होगा, और व्यक्ति अच्छा है तो समाज भी अच्छा होगा। व्यक्ति का लाइफ अच्छा है तो समाज का लाइफ अच्छा होगा, और समाज का लाइफ अच्छा है तो व्यक्ति का लाइफ अच्छा होगा। सो इंडिविजुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन सोशल लाइफ, एंड सोशल लाइफ डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वर्क. This work has two aspects. One is individual type of, and other is social type of, and both aspects of works depend upon each other, interdependent. What did Dr. Zakir Hussain say about material and cultural life, individual and social development, giving a special flavor to India? ये अगर सिर्फ हम आध्यात्मिकता की बात करें, कल्चरल लाइफ की महानता की बात करें, और डेवलपमेंट नहीं हो फिजिकली, वेल्थ के मामले में उत्पादन नहीं हो, तो क्या वो मज़ेदार होगा? नहीं होगा। सो ही इज सेइंग, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट मटेरियल लाइफ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कल्चरल लाइफ. Without richness, achievement in the field of material life, one cannot be a happy country, and so one cannot maintain the greatness of dignity of the cultural life. Individual and social development, individual development अगर होता है तो वो social development भी होगा. So individual development and social developments are interdependent. And so this type of quality is just like adding a special flavor to Indian development, Indian life, Indian country.
भारतीय जो हमारी शैली है उसको ये मजबूती प्रदान करेगा अगर मटेरियल लाइफ भी हमारा बहुत डेवलप हो तो। देन थर्ड इज पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल प्रोपोसेस एक्सप्लेन। ये महात्मा गांधी के विचार को हाईलाइट किया है इन्होंने कि पावर जो है उस पावर शक्ति गवर्नमेंट शुड एक्ट फॉर मोरल पर्पसेस। ये गांधी जी बोले थे कि सिर्फ ये डेवलपमेंट के नाम पर फिजिकल डेवलपमेंट धन संपत्ति के लिए ही विकास हो ये संपूर्ण नहीं है। वो तभी सार्थक है व्हेन इट इज बेस्ड अपॉन मोरल पर्पस। मोरल मतलब नैतिक। मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिए, मनुष्य को सब के लिए सोचना चाहिए, ये पूरा इन्वायरमेंटल कंसर्न उसके अंदर होना चाहिए। सो ए मैन शुड बी डेवलप्ड एज ह्यूमन बीइंग। इसको आप ये भी समझिए कि विवेकानंद हैज सेड दैट द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट ए गुड कैरेक्टर। कैरेक्टर्स वाला इंसान बनना चाहिए। माने शिक्षा क्या हो, संस्कार के साथ हो। ये संस्कार और शिक्षा, दैट दीज टू फैक्टर्स मस्ट बी अटैच्ड। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। पास्ट जो समय है बीता हुआ कल वो डेड नहीं है, वो स्थिर नहीं है, उसमें बहुत कुछ हिडन थिंग्स हैं एंड दे आर गुड एंड वी मस्ट फॉलो देम। विरासत है उनकी, वी कैनॉट रिजेक्ट देम एज डेड एंड स्टैटिक वन। दे कैन ऑल्सो शेप आवर फ्यूचर। हाउ डज जाकिर हुसैन emphasize the significance of past? Past inherits, past passes through many changes, but it has also got many important values, life value points. ये पास्ट के पास भी बहुत बड़ी विरासत होती है, पूर्वजों का जो एक्सपीरियंस है, दैट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड, दैट शुड बी कैरिड ऑन। जो पुरानी विरासत हमारी है महानता की ज्ञान के क्षेत्र में, वो भी हमारी विरासत है और उसको लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये पुराना है उसको वी शुड नॉट रिजेक्ट दैट इज डेड एंड स्टैटिक। नो, दैट इज ऑल्सो फुल ऑफ लाइफ एंड सफिशियंट गुड फॉर आवर फ्यूचर। What does Zakir Hussain exhort us to do to build the new life of the nation? New life of the nation should be made upon the basis of cultural heritage, on the basis of material development, and it can be done through educational practices. In what context does Dr. Zakir Hussain say Bharat is my home? He is saying that Bharat is the embodiment, symbol of so many characters, so many geographical expressions, religious expressions, creeds. तो ये इतना सारा जो मतभेद है, भिन्न भिन्न तरह की बनावट है इस देश की, तो ये सब कुछ मिला करके भारत है। तो भारत में रहने वाले सारे लोग वो हेड हुए, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज द हेड ऑफ द कंट्री। तो जितने भी देश में लोग रहते हैं सारा एक फैमिली है, that is just like a family, and the president of the country is the head. So he is the head of the country and the whole Bharat is his home, and he is the supreme guardian of this home, this family. ग्रुप डिस्कशन के लिए है, ये आप कर लेंगे, इसमें हम यहाँ टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। अब ये कंपोजिशन है, तो राइट ए समरी ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन्स स्पीच इन अबाउट 150 वर्ड्स। पूरा का समरी लिखिए। तो इसमें आपको ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, टीचर्स डे पर लिखना है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें, लिखें। और कैसे स्पीच लिखाता है, स्पीच के लिए कि वीडियो मेरा अलग से बन रहा है, बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा, तो प्लीज़ उसको भी देखते रहिए। सब्सक्राइब आपने किया है, अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लेंगे, और लोगों को भी बताएंगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए अगर अच्छा लगता हो तो मेरे दोस्तों। बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई एम श्योर दैट इफ़ यू राइट दीज थिंग्स इन योर एग्जामिनेशन, in your answer sheets, then no doubt you will get good marks. So I am very hopeful. You have elected as the president of your school student council, इसमें भी आप लिखिए। मेक ए डायरी एंट्री लिखना है, उसके लिए भी आपको राइटिंग सेक्शन में मिलेंगे बहुत सारा कुछ। तो प्लीज गो थ्रू माई प्ले लिस्ट एंड देयर यू विल फाइंड आउट मैनी थिंग्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये इस पर लिखना अलग से नहीं है, वैसे स्पीच कैसे लिखाता है, राइटिंग सेक्शन का एक स्पेशल वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस फॉर यू
So please keep on watching. After that, here next part of the question, इसको करते हैं करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसको आप सही करें। कन्फेस, CONFESS, ठीक है। आप इसमें ये SS लगाएंगे, इसमें करेंगे आप ये SS, ये SS, ठीक है। कन्फेस हो गया। ओवर, फिर W के बाद में H लिखिए इसमें, ठीक है। ये ओवर, ये कलम ठीक से चल नहीं रही है। ओवर वेल्म WH, ठीक है। WHELMED, ओवरवेल्म्ड है। ये करेंगे आप WOVER, WHELMED, WH करेंगे, W के बाद में ए छूटा हुआ है। देन ये नेक्स्ट आपका एरोडिशन, तो ERUDITION, ये इसमें एक ही आर होगा, सिंबल आर इसमें करेंगे आप, सिंगल आर होगा, ERUDITION, ठीक है। प्लेफुल, प्रेफुल में एक एल होगा, सिंगल एल, FULL नहीं, इसमें एक एल ज़्यादा है, इसको हटाइए, प्रेफुल। प्रिजम्पशन, यहाँ एस करना है जे के जगह पर, PRESUMPTION, ये कर देंगे आप। प्रिजम्पशन, यहाँ एस लगेंगे जे की जगह पर, PRESU, ठीक है। इनएस्केपेबली, ठीक है। ये इन के बाद में ये एस है ना, तो इसको ES करेंगे, EINES, स्केप, ES होता है, ESCAPABLE, ये आपका सही हुआ। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट में आइए, ये डिक्शनरी खोज कर लिखने के लिए कहा गया है। एंड 2 मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, द वन इन विच इट इज़ यूज्ड इन द लेसन एंड द अदर विच इज़ मोर कॉमन। इसका 2 मीनिंग बताइए आप, ये डिक्शनरी से खोज करके आप लिखें। ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाना, ठीक है। तो ये कोई चीज़ ले आया, तो ही ब्रॉट ए बुक फ्रॉम द मार्केट, मान लीजिए एक सेंटेंस बना दिए, तो ही ब्रॉट ए रिफॉर्म इन दिस कंट्री, एक मीनिंग सुधार करना और लाना। ब्रॉट का एक मीनिंग हो गया सुधार करना, ठीक है, और एक मीनिंग हुआ लाना, कैरी। ही ब्रॉट ए बुक फ्रॉम द मार्केट एंड ही ब्रॉट ए चेंज इन द सोसाइटी। डिग्री, ये डिग्री हो गया लेवल, एक मीनिंग होता है लेवल, ही गॉट फर्स्ट क्लास डिग्री, ठीक। और दूसरा होता है ये डिग्री का मतलब होता है ये जो पैमाना नापते हैं हम लोग, इतना डिग्री, ठीक है। तो वो 90 डिग्री का कोण बनाइए, तो डिग्री का यूज वो भी होता है। फॉर्म, कंस्ट्रक्ट ए 90 डिग्री एंगल। इंटर, ENTER, तो इंटर करना, ये प्रवेश करना और किसी को शामिल करना, दोनों मीनिंग है। डेड, डेड का मतलब पास्ट भी, PAST, और डेड का मतलब बिल्कुल शांत, चुप, ये भी होता है। रिन्यूअल, पुनर्जागरण, रिन्यूअल पुनर्जागरण भी होता है। और रिन्यू कर दिए किसी को, ठीक से बना दिए फिर से दोबारा, तो रिन्यू हो गया। रीड केयरफुली द फॉलोइंग सेंटेंसेज टेकन फ्रॉम द लेसन, आप इसको देखें और कैसे कैसे बना है सो देखा जाए, तो इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज है। तो मूल वर्ड क्या है खोजना है आपको, तो फंडामेंटल है। मूल वर्ड इसमें न्यू है, तो न्यू में RE अटैच है, तो पहले लगता है वो प्री हुआ, और सफिक्स हुआ जो बाद में लगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो प्री मतलब जो पहले लगता है, तो इसमें ये रिन्यूअल में RE, ये आपको री हो गया, री है उसमें प्रीफिक्स, और AL लगा दिए बाद में, तो AL हो गया सफिक्स। इसमें माई है मूल वर्ड, और सेल्फ लगा दिया गया है बाद में, तो सेल्फ हो गया आपको सफिक्स। सेल्फ, टोटल है मूल वर्ड, ठीक है। ITY उसमें अटैच किए हम, तो ये आपको हो गया सफिक्स ITY, नहीं तो टोटल था मूल वर्ड। कांस्टेंट, उसमें LY लगा दिया। बिल्ड, और उसमें ING लगा हुआ है, तो बिल्ड है मूल वर्ड, ठीक है। आफ्टर दैट दिस, ये मैचिंग, रिक्वेसाइट,
रिक्वाइसाइट क्या मतलब होता है? नेसेसरी। रिक्वाइसाइट मीन्स नेसेसरी, दिस रिक्वाइसाइट नेसेसरी। पेरिल, पेरिल मीन्स थ्रीट, ठीक है, सो थ्रीट। प्रिजुम्पशन, प्रिजुम्पशन मीन्स ओपिनियन, ये। एथनिक मीन्स रेशियल, और प्लेज मीन्स प्रोमिस। दिस वर्क इज डन फॉर यू। देन कम हियर। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल, ये प्रेयरफुल आपको ए में। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू स्टेट, ये इसमें आप लिखेंगे ये बी, ठीक है। सी द चॉइस ऑफ हिज ऑफिस हैज बीन मेड ड्यू टू लॉन्ग एसोसिएशन, ये सी। डी दिस ड्यूअल, इसमें ड्यूअल करें डी, और ये स्पेशल मतलब यहाँ पर ये आपको स्पेशल इसमें लिखिए, स्पेशल, ठीक है। तो ये CIL, ठीक है, ये सीधे स्पेशल यहाँ से खोज करके आप इसको यहाँ भर दीजिए। तो ये आपका चैप्टर, ये क्वेश्चन आंसर मैंने किया। अब यहाँ पर कुछ और बचा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। परसूट ऑफ मतलब खोज, सर्च। तो ही वाज इन हिज लाइफ वाज इन परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। परसूट ऑफ का मतलब सर्च, सर्च समझ के बनाना है। ब्रिंग टू, लाना। ही ब्रॉट ए रिफॉर्म टू दी सोसाइटी, ही ब्रिंग्स ए रिफॉर्म टू दी सोसाइटी। ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ, मिला जुला रूप। दिस इंडिया इज द approximation of all cultures. Bring forth, आगे ले आना। The real meaning of education, real norms of education, the gist of all the cultures should be brought forth through education in our country. ये I must confess, must का यूज कहाँ होता है? तो must का यूज होता है श्योरली, श्योरिटी शो करने में। जैसे you must take the medicine इफ़ यू वांट टू लिव। और कैन का यूज होता है सिंपल सकने के अर्थ में, जैसे आई कैन डू दिस वर्क। इसमें कोई नेसेसिटी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मस्ट में नेसेसिटी बड़ी होती है। मस्ट मतलब उसके बगैर काम होगा नहीं। जैसे इफ़ यू डोंट नॉट टेक दी, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, अदरवाइज यू विल डाई। ये मस्ट बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, वहाँ मस्ट का यूज करेंगे। अदरवाइज वी विल यूज कैन, सो आई कैन डू दिस वर्क। सिंपल एक्सप्रेशन जो सकने के अर्थ में होता है, वहाँ पर कैन का यूज होगा। ये मस्ट और कैन का यूज है, ये आप देखेंगे। मस्ट मतलब जहाँ श्योर है कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा वो, और कैन होता है सकने के अर्थ में, कि सिंपल सकने का अर्थ है आई कैन प्ले, आई कैन गिव यू दिस बुक, ठीक है, बट आई मस्ट डू दिस वर्क टू पास द एग्ज़ाम। ये मस्ट मतलब निश्चित रूप से, श्योरली जो होना चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, वहाँ मस्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने किया, उसके बाद वाला आप खुद करेंगे। फिर नहीं होगा तो हम लोग बात करेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे आपको हेल्प करने के लिए। सो आई थिंक यू हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। अगेन आई होप दैट योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। सो प्लीज़ गो थ्रू माई प्ले लिस्ट टू सर्च all my products. I think you will be happy to view this video. Thank you for watching. Have a nice day.